السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ۔ دوستو، آج لیکچر نمبر 6 ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 پر میں بات کرنا چاہوں گا۔ اس آیت میں ہدین آیا ہے جس کے معنی یہ لوگ قربانی کر دیتے ہیں، جبکہ قربانی قرابہ فیملی سے ہے اور معنی قربت سے متعلق ہے، لیکن ہمارے ہاں مروجہ رسم جو منائی جاتی ہے یہ قریب نہیں کرتی ہے بلکہ لوگوں کو دور کرتی ہے، کیونکہ جو لوگ یہ رسم سال بعد ادا کرتے ہیں ان کے اپنے رشتہ دار ان سے ناراض ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں گوشت نہیں ملا یا بہت کم ملا ہے۔ اسی طرح محلے دار بھی ان لوگوں سے ناراض ہو جاتے ہیں جو جانوروں کے گلے پر چھری چلا کر گوشت بنا کر فریج میں رکھ لیتے ہیں اور محلے دار شکوہ کرتے کہ ہمیں کچھ ملا ہی نہیں، دوری کا سبب بنتی ہے، جبکہ قربانی کے معنی ہی قربت یا نزدیک ہونے سے متعلق ہیں۔ لیکن میں قربان جاؤں ہدین کو انہوں نے قربانی معنی پہنا دیے۔ مزید اس آیت میں بالغ الکعبۃ اور کفارۃ اور طعام مساکین اور النعم بھی موجود ہے۔ سب کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ میرے پاس ترجمہ ایک مشہور ہستی کا ہے، جب یہ پڑھا تو کچھ سوالات سامنے آئے۔ یہ سوالات ایک طالب علم کے طور پر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ آپ میں سے وہ دوست جو علمی استطاعت رکھتے وہ ان کے جوابات دے کر میری رہنمائی کر سکتے ہیں، لہذا ترجمہ میں نے اسکرین پر لگا دیے، غور کریں۔ اس میں لکھا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ دوستو، اس میں یا ایہا کا ترجمہ انہوں نے اے کیا ہے، جبکہ اے ترجمہ صرف یا کا ہوتا ہے، ایہا کا ترجمہ ان لوگوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آمنو کے معنی انہوں نے ایمان کر دیے، جبکہ ایمان الکتاب المبین کی ایک الگ مینشن ہے۔ اگر آمنو کے معنی ایمان ہے تو پھر ایمانی کے معنی کیا بنتے ہیں، اس پہ رہنمائی کریں۔ مزید انہوں نے لکھا ہے کہ احرام کی حالت میں شکار نہ مارو۔ اس پر سوال یہ ہے کہ آخر تقتلو کے معنی جان سے مارنا بھلا کیسے ہوگے، جبکہ اس کا مصدر قتلن ہے۔ یہ وہی مصدر ہے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 92 میں قاتلہ کا ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قتلن مصدر سے جہاں بھی قتل لفظ آیا ہے الکتاب المبین میں، اس کے معنی جان سے مارنا نہیں ہے۔ اگر اس کے معنی جان سے مارنا لیں تو پھر سورہ 3 کی آیت نمبر 21 میں ہے کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین۔ اس میں النبیین جو ہے یہ جمع ہے، اس میں سارے کے سارے ہی نبیین آتے ہیں۔ میں نے اکثر لوگوں سے یہ سوال کیا کہ اب یہ آیت ہے، اس میں لکھا ہے کہ تمام نبیین کو قتل کیا گیا۔ جب یہ سوال رکھا تو لوگوں نے ریٹرن جواب دیا کہ ایسا نہیں ہوا، یعنی ان لوگوں کو پتہ ہے کہ قتل کے معنی جان سے مارنا نہیں ہے۔ اگر اس کے معنی یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے، وہ یہ آیت ہی بتا رہی ہے کہ کیا ہے، یہ کہہ کر کے یکفرون بآیات اللہ، وہ کفر کر رہے ہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ، یعنی اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا کیا ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، نبیین کو وہ قتل کر رہے ہیں۔ جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کر رہے ہیں وہ نبیین کو قتل کر رہے ہیں، یعنی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا نبیین کو قتل کرنا ہے۔ اب آیتوں کو اگنور کیا جاتا ہے، لہذا قتل کے معنی اگنور کے یا حقائق کو مسخ کرنا کے ہیں، کیونکہ آیتوں کی غلط انٹرپریٹیشن بھی اپنے عقیدے کے مطابق کی جاتی ہے۔ دوستو، ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس مشہور مترجم نے اپنے ترجمہ میں لکھا ہے کہ وحشی جانور کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ تو اب دیکھیں، انہوں نے لکھا ہے وحشی شکار کو نہ مارو، جبکہ انہوں نے الصیدہ کے معنی شکار کیے ہیں، اور ترجمہ کرتے وقت انہوں نے اس کو اسم نکرہ بنا دیا ہے، جبکہ یہ اسم معرفہ ہے۔ معرفہ ہونے کی وجہ سے اس میں ہر طرح کا الصیدہ نہیں آتا۔
यहाँ बात ख़ास असैदा की हो रही है जिसे तुम कत्ल करते हो, जबकि इसके बरक्स देखें तो हर आदमी शिकार नहीं करता। जबकि आयत में असैदा मारफा आया है, इसके मानी पकड़ना और गिरफ्तारी से मुतल्लिक के हैं। अगर हम मानी करते हैं पकड़ना और गिरफ्तारी, तो पकड़ा तो बंदा कोई भी जा सकता, मसलन एक गलत दलाइल देने वाला भी पकड़ा जा सकता है, और एक गलत बात करने वाला भी पकड़ा जा सकता है, गलत बात या तोहमत लगाने वाला भी पकड़ा जा सकता है, वगैरह वगैरह, हर बंदे पे ही फिट आ सकती है। लेकिन इन लोगों ने इस आयत को भी मखसूस और बहुत छोटे जाविये पर अप्लाई कर दिए, जबकि ये होना नहीं चाहिए था। मज़ीद पॉइंट नंबर 2 है मेरे पास, इन्होंने ब्रैकेट में वहशी क्यों लिख दिया? क्या साहब किताब वहशी लफ्ज़ का कलमा आयत में लिखवाना भूल गए थे, जो इन्होंने तर्जुमा में ब्रैकेट डालकर वहशी लिख दिया, जबकि अरबी में वहशी या जंगली जानवर को अल-हैवानातुल बारियातु कहा जाता है, जबकि ये लफ्ज़ आयत में मौजूद ही नहीं है। लेकिन इस मुतरजम समेत जिसने तर्जुमा में वहशी जानवर लिखा है, शायद इनको ख्वाब आ गया था कि आयत में अल-हैवानातुल बारियातु लिखा हुआ है, जबकि वहशी जानवर को भी सुधार कर पालतू लोग बना रहे हैं। आप देखते हैं बहुत से लोगों को कि उन्होंने ऐसा किया हुआ है। पॉइंट नंबर 3 है, इन्होंने हुरुम के मानी एहराम कर दिए हैं, जबकि यही लफ्ज़ सेम हरकत के साथ सूरा 9 की आयत नंबर 36 में आया तो मानी हुर्मत कर दिए हैं, जबकि सूरा 5 की 95 में मानी एहराम और सूरा 5 की 1 में एहराम की हालत में ये मानी किए हैं। आखिर क्यों एक ही लफ्ज़ सेम है, कोई फ़र्क नहीं, हरकत का भी फ़र्क नहीं, और मानी बदल दिए? ये क्या किया है, इस पर हमारी रहनुमाई करें। आखिर इतने बड़े बड़े ब्लंडर क्यों किए गए? तकरीबन तमाम मुतरजमीन ने हुरुम के मानी सूरा 9 की आयत नंबर 36 में हुर्मत यानी एहतराम तर्जुमा किया है, और सूरा 5 की 1 में और 95 में मानी एहराम बांधो किए हैं। आखिर लोगों के साथ इतनी बड़ी गेम क्यों खेलेगी? क्यों ना उनको ठीक बात बताई गई? जबकि आप देखें हुरुम पर लगी हुई हरकत सेम है, कोई फ़र्क नहीं। क्यों? अपने नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इन्होंने इसके मानी एहराम किए हैं, जबकि एहराम इसी फैमिली का यानी हरमा फैमिली का एक अलग लफ्ज़ है और मस्दर है। इसके मानी भी ममनुआ करने से मुतल्लिक है, एहराम के मानी ममनुआ करने से मुतल्लिक है, जबकि हुरुम के मानी ज़िद की सूरत में अल-किताबिल मुबीन खुद तय करती है, जैसा कि सूरा माइदा की आयत नंबर 1 में मुहिल्ली जो कि इसम फ़ाइल है, इसकी ज़िद में हुरुम आया है। और ये भी शेयर करता चलूँ कि सूरा 9 की 36 में हुरुम के मानी हुर्मत कर दिए। ये क्यों लोगों को ठीक बात ना बताई गई, जबकि हुरुम सेम लफ्ज़ है तीनों जगहों पर, कोई फ़र्क नहीं है। जबकि हुर्मत अल-किताबिल मुबीन की एक अलग मेंशन है, जो कि सूरा 22 की आयत नंबर 30 में हुरुमातिल्लाही आया है, और सूरा 2 की आयत नंबर 194 में अल-हुरुमातु आया है। इसी तरह हम हुर्मत के राह पर शद के साथ देखें तो सूरा 4 की आयत नंबर 23 में हुर्रिमत और 5 की आयत नंबर 3 में हुर्रिमत आया है। लेकिन इन्होंने हुरुम को सूरा 9 की 36 में हुर्मत में बदल कर इल्मी इंसाफदारी नहीं की, बल्कि इल्मी बददयानती की है। सवाल नंबर 2 है, मरवजा तर्जुमा का स्क्रीनशॉट देखे मैंने लगा दिया है। इसमें लिखा है, अगर तुम में से कोई जानबूझकर ऐसा कर गुजरे तो जो जानवर इसने मारा हो। पॉइंट नंबर 1 है, यहाँ पर कातला का मस्दर कतलन है, इस पर मैं ऊपर बात कर चुका हूँ। पॉइंट नंबर 2 है, जो जानवर इसने मारा। सवाल ये है कि अन्नामी के मानी जानवर भला कैसे हो गया, जबकि इन हरकत के साथ ये लफ्ज़ इसी आयत में आया है, जबकि अरबी में
जानवर को हैवान कहा जाता है। सवाल नंबर 3 है, लिखते हैं जी उसके हम पल्ला एक जानवर उसे मवेशियों में से नज़र देना होगा जिसका फैसला तुम में से 2 आदल आदमी करेंगे। यानी जो शिकार करने वाला है उसके मवेशी भी होने चाहिए ताकि वो अपने मवेशियों में से वो एक जो है वो हम पल्ला जानवर वो नज़र कर दे। दोस्तों पॉइंट नंबर 1 है, इस पर सवाल ये है कि ये नज़र किस लफ्ज़ का तर्जुमा है। अगर हदियन का तर्जुमा नज़र है तो फिर अलहदिया इसी अलजज़उ से सूरा 2 की आयत नंबर 196 में आया है। इसके मानी कुर्बानी क्यों किए गए हैं। अगर हदियन के मानी नज़र है तो फिर सूरा 2 की आयत नंबर 196 में नज़र क्यों ना लिखा, वहाँ कुर्बानी क्यों लिख दिया, रहनुमाई करें। सवाल नंबर 4 है, मशहूर हस्ती अपने तर्जुमा में और इनके साथ साथ बाकी मुतरजमीन समेत तकरीबन सब ने लिखा है कि जो जानवर इसने मारा हो इसके हम पल्ला एक जानवर उसे मवेशियों में से नज़र देना होगा जिसका फैसला तुम में से 2 आदल आदमी करेंगे और ये नजराना काबा पहुंचाया जाएगा। पॉइंट नंबर 1 है, सवाल ये है कि अगर किसी फ़र्द का जानवर था और वो शिकारी ने शिकार कर लिया तो जिस फ़र्द का जानवर शिकार हुआ इसको क्या मिलेगा, क्योंकि जानवर के बदले वैसा ही जानवर काबा भेजा जाएगा। होना तो ये चाहिए था कि अगर किसी आदमी के जानवर का शिकार हुआ हो तो जानवर या इसके हिसाब से मुआवजा काबा भेजने की बजाय उस आदमी को दिया जाए जिसका जानवर शिकार हुआ। लेकिन यहाँ जिस आदमी का जानवर शिकार हुआ उसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। आखिर जिस आदमी का जानवर शिकार हुआ इसको इंसाफ कौन देगा। ना तो उसको 2 आदल आदमी इंसाफ देने वाले हैं और ना ही मरवजा तर्जुमा के तहत अल्लाह मुनसिफ रहा, क्योंकि अल्लाह इंसाफ दे ही नहीं रहा है। आखिर क्या इस सूरत में इनको इंसाफ ना करने वाला माना जाए, रहनुमाई करें। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो मुतरजम लिखते हैं कि सवाल नंबर 6 है, या नहीं तो इस गुनाह के कफ़ारा में चंद मस्कीनों को खाना खिलाना होगा। पॉइंट नंबर 1 है, गुनाह आयत के किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया है, रहनुमाई करें, क्योंकि आयत के कंटेंट में कोई ऐसा लफ्ज़ मुझे नज़र नहीं आया। पॉइंट नंबर 2 है, कफ़ारातुन का तर्जुमा क्यों ना किया गया। तर्जुमा में कफ़ारातुन को कफ़ारा ही लिख दिया, आखिर क्यों लोगों को मुकम्मल अवेयरनेस नहीं दी गई। पॉइंट नंबर 3 है, तामु मसाकीना का तर्जुमा मस्कीनों को खाना खिलाना कर दिया गया, आखिर किस असूल के तहत ये किया गया। पॉइंट नंबर 4 है, मसाकीना का तर्जुमा मस्कीनों लिख दिया, इसका तर्जुमा भी नहीं किया। मसाकीना को मस्कीनों तर्जुमा में डायरेक्ट लिख दिया, इसकी वजाहत क्यों ना की गई। मैं आपको बताता चलूँ कि अरबी में खाना खाने को तनावल तामी कहा जाता है, लेकिन इन्होंने तामु मसाकीना को तनावल तामी बना दिया है, आखिर क्यों। और ये कुलू के मानी भी खाओ करते हैं। और मज़े की बात ये है कि आयत में कुलू तामा है ही नहीं, जबकि आयत में तामु मसाकीना है, जबकि ताम के मानी इतआमु तामा अतअम मानी जो इसके बनते हैं वो ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम करना ये बन रहे हैं। इसी तरह क्योंकि तामा राज़ाका का मुतरादिफ है और राज़ाका के मानी सामान ज़िंदगी या ज़िंदगी गुजारने का सामान है। इसी तरह सूरा 47 की आयत नंबर 15 में इन्होंने तअमुहु के मानी इसका मज़ा, और सूरा 2 की आयत नंबर 249 में यतअमुहु आया है तो मानी उसको चखेगा या उसको पिएगा ये लिखे हैं, जबकि इन दोनों अल्फाज के अलजज़उ दूसरी जगह लफ्ज़ आए हैं तो मानी खाने से मुतल्लिक किए गए हैं। अब आप खुद देख लो कि कहीं कुछ मानी किए हैं और कहीं कुछ मानी किए हैं। मज़ीद पॉइंट नंबर 9 को हम देखते हैं तो इस मशहूर हस्ती का तर्जुमा गौर करें, इसमें लिखा है या इसके बेकदर रोज़े रखने होंगे। पॉइंट नंबर 1 है, इस पर सवाल ये है कि रोज़ा आयत के किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया गया। पॉइंट नंबर 2 है, आयत के इसी हिस्से में
फ़ेल अमर तो है ही नहीं, तो फिर आयत के इस हिस्से में फ़ेल अमर क्यों लगा दिया। पॉइंट नंबर 3 है, लिखा है रोज़े रखने होंगे। सवाल ये है कि कितने रोज़े रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर तो इनके अपने तराजम में नहीं बताया कि कितने रखने हैं, रहनुमाई करें कि कितने रखने हैं। अगर आप लोग कहते हो कि सूरा 4 की आयत नंबर 92 के मुताबिक 2 माह के रखने हैं, तो सवाल ये है कि वहाँ तो मरवजा तर्जुमा के तहत मोमिन गलती से मरेगा तो 2 माह के रोज़े रखने हैं, लेकिन इस आयत में मरवजा तर्जुमा के तहत जानवर का शिकार है। दोनों आयत में अलग अलग बातें अलग अलग पैरामीटर से हो रही हैं। अब खुद ये लोग अल्लाह बनकर ऐसा हुक्म सादर करते हैं कि ये वही वाला होगा। भाई लोगों को धोखा क्यों दे रहे हो, रहनुमाई करो मेरी। पॉइंट नंबर 4 है, सवाल नंबर 10 का, इसमें लिखा है रोज़े रखो लेकिन कितने रखने ये पता नहीं है कि कितने रखने हैं। फ़र्ज़ करें किसी आदमी का 2 लाख का जानवर शिकार हो गया, इस पर 6 माह के रोज़े रखने पड़ जाए तो बंदा वैसे ही ऐसी की तैसी फिर जाएगी उसकी। जबकि सूरा अल बकरा आयत नंबर 185 के तहत तो आसानियाँ चाहता है अल्लाह, लेकिन 6 माह के रोज़े आसानी नहीं बल्कि मुसीबत होंगे। मज़ीद मेरे पास पॉइंट नंबर 5 है, अगर किसी बूढ़े आदमी को 6 माह के रोज़े रखने पड़ जाए तो वो बेचारा वैसे ही मर जाएगा। आखिर इसकी मौत का ज़िम्मेदार कौन होगा, क्योंकि आप देख लें आजकल गर्मी ही इतनी है कि बंदा वैसे ही मरने लगता है। जब वो काम करेगा तो उसकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी, वैसे ही मर जाएगा वो। पॉइंट नंबर 6 है, चलो 6 माह की जगह 2 माह के रोज़े कर लेते हैं, तब भी ये सवाल सामने आता है कि बूढ़े तो फिर भी मर ही जाएंगे, आखिर क्या किया जाए। सवाल नंबर 6 है, सवाल ये है कि यहाँ तो ये भी नहीं लिखा कि बीमार आदमी को छूट है। अगर बीमार आदमी रोज़े रखेंगे, अगर दवा ना खाएंगे तो वो मर जाएंगे, आखिर इनकी मौत का ज़िम्मेदार कौन होगा। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो गौर करें, या इसके बकदर रोज़े रखने होंगे, जबकि आयत का मतन यूँ है औ अदलु ज़ालिका सयामन। अब आपने गौर किया ज़ालिका का तर्जुमा किया ही नहीं गया। इसकी वजह यह है कि इन्होंने अपने अक़ीदे के ताबे ये आयत कर ली, जबकि ज़ालिका इसम इशारा बईद वाहिद मुज़क्कर है और अदलु ज़ालिका मदाफ़ और मदाफ़ अलैहि भी है। लेकिन आप देखें ज़ालिका का तर्जुमा नहीं किया, आखिर मुतरजमीन ने ज़ालिका क्यों खा लिया, रहनुमाई करे। मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो मैं इसी मशहूर मुतरजम साहब का तर्जुमा लगा रहा हूँ, गौर करें। और ये नजराना काबा पहुँचाया जाएगा या नहीं, तो इसके गुनाह के कफ़ारा में चंद मस्कीनों को खाना खिलाना होगा, इसके बकदर रोज़े रखने होंगे। इस पर सवाल ये है कि जिसके पास जानवर जो नजराना करना है, इसके पास वो ख़रीदने के पैसे ना हो तो जानवर को तो क्या वो भिजवाने के पैसे ही नहीं है उसके पास, वो बेचारा क्या करेगा, रहनुमाई करें। पॉइंट नंबर 2 है, मस्कीनों को खाना खिलाने के पैसे ना हो तो क्या किया जाए। पॉइंट नंबर 3 है, जो पहली 2 शर्तें पूरी ना कर पाए तो तीसरा शर्त के तौर पर रोज़े रखना है। सवाल ये है कि बीमार और बूढ़े आदमी क्या करेंगे और कितने रखने हैं, ये भी तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। सूरा अल बकरा की आयत नंबर 183 से 187 तक वाले सयाम में ये शामिल नहीं, वहाँ वो सिर्फ मरवजा तर्जुमा के तहत रमज़ान के महीने के लिए है, और वहाँ जो मरीज़ का जिक्र है वो यहाँ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि यहाँ जो सयामन आया है ये रमज़ान वाला नहीं। जो भी आदमी इसको रमज़ान वाले में शामिल करेगा वो ठीक बात नहीं कर रहा है। आयत की अंडरस्टैंडिंग की जानिब बढ़ते हैं तो पहले मशहूर अल्फाज के मानी कर लेते हैं, इसके बाद तर्जुमा देखते हैं। तो नंबर 1 पर है तक़तुलू, इस पर बहस में ऊपर कर चुका हूँ, इसके मानी हकूक़ मस्ख़ करना या इग्नोर करना से मुतल्लिक है। असईदा के मानी पकड़ना या गिरफ्तारी से मुतल्लिक है। नंबर 3 पर है हुरुम, इन हरकत के साथ अलकिताब में सिर्फ 3 बार आया है और अलकिताबिल मुबीन इसके मानी खुद तय करती है। सूरा अल-माइदा आयत नंबर 1 में मुहिल्ली बतौर इसम फ़ाइल है, इसकी ज़िद हुरुम है। मुहिल्ली हल पेश करने वाले और इसकी ज़िद में हुरुम के मानी ममनुआ या मना करने से मुतल्लिक खुद ही तय हो जाते हैं। नंबर 4 पर है अन्नामी, इन हरकत के साथ एक बार ही ये इस आयत में आया है और पूरी अल किताब में भी एक बार ही, और मानी है तोहफ़ा और इसके दूसरे मानी है
रजामंदी। नंबर 5 पर है हादियन। इसकी तफसील जानने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा रहा हूँ, उस पर जाएं। और इसके मानी बनते हैं रसूल से मुंसलिक तोहफा हदायत। लिहाजा पॉइंट नंबर 6 है अलकाबा के मानी भी। इससे पिछले वाले लेक्चर में मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। नंबर 7 पर है कफ़ारातुन। ये कफ़ारा युकफ़िरु अल कफ़ारातु से मानी इसके बनते हैं इसकी तलाफ़ी करनी या बतौर तोहफ़ा करना है। नंबर 8 पर है तआमा के मानी, ऊपर मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। दोस्तों मसाकीन के मानी स्क्रीनशॉट में देखें। पुअर अफराद को कहा जाता है, यानी ज़रूरतमंद अफराद को कहा जाता है। दोस्तों अब हम सूरा 5 की आयत नंबर 95 की अंडरस्टैंडिंग की जानिब बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़तुलुस सैदा। अटेंशन, वो जो अफराद जो वो अमन के दावेदार हुए, तुम पकड़े हुए को या फंसे हुए को या गिरफ्तार शुदा अफराद को इग्नोर नहीं करते हो या तुम उनके हकूक़ मस्ख नहीं करते हो। यानी अमन पसंद जो अफराद हैं, अगर वो किसी को पकड़ लेते हैं या कोई फंसा हुआ है किसी चीज़ में या उसको गिरफ़्तार किया है, तो उनके जो हकूक़ हैं वो मस्ख नहीं करते और ना ही उनको इग्नोर करते हैं। यानी ये नहीं हो सकता कि वो उनको पकड़े और उनको पकड़ के किसी कोने खांचे में फेंक दे और वो बेचारा पूरी उम्र ही उधर गुजारे और वहीं मरा जाए। इग्नोर नहीं करते उसको, यानी उसका ख्याल रखते हैं ईमान वाले। यहाँ भी यही कहा गया कि तुम उनको इग्नोर नहीं करते हो या उनके हकूक़ मस्ख नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हैं, सवाल ये सामने आता है। तो इसके मुतालिक आयत के अगले हिस्से में बताया गया ये कह कर के व अंतुम हुरुम, और कि तुम्हें मना किया गया है, यानी रोक लगा दी है कि ये नहीं करना है तुमने। मज़ीद क्या है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है वमन क़तलहु मिनकुम मुतअम्मिदन। और तुम में से जिस किसी ने पकड़े हुए या फंसे हुए या गिरफ्तार शुदा फ़र्द को बाइरादा नज़रअंदाज किया या जानते बूझते इसके हकूक़ को मस्ख किया या इसने इसको नुकसान पहुंचाया, यानी अगर पकड़ा है उसके हकूक़ को मस्ख किया है या उसको नज़रअंदाज किया है, तो फिर ऐसे बंदे के साथ जो ये कर रहा है पकड़े हुए के साथ, तो उसके साथ क्या करना है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है। ये कह कर के फ़जज़ाउम मिस्लु मा क़तला मिनन नअमी यहकुमु बिही, फिर बदला है इसी जैसा जो भी इस पकड़ने वाले ने हकूक़ को मस्ख किया या इग्नोर किया या नुकसान पहुंचाया, मैसर करदा इनाम के ज़रिए से अल्लाह फ़ैसला करता है। दोस्तों यहाँ पर मिनन नामी के मानी है इनाम, मैसर करदा तोहफ़ा, और मैसर करदा तोहफ़ा अल्लाह की तरफ से अल किताबिल मुबीन है। अल्लाह इसी के थ्रू फ़ैसले करता है और अदल करने वाले अफराद भी इसको सामने रख कर फ़ैसला करते हैं। और जो अदल करने वाले हैं उन्होंने क्या करना है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है। ये कह कर के ज़वा अदलिम मिनकुम हदियम बालिगल काबती, तुम में से दो इंसाफ की महारत रखने वालों को अल्लाह अलकाबा यानी नमाया बेहतरीन जानकारी देने वाले मंशूर का तोहफ़ा हदायत पहुंचाने वाला है। यानी उनका जो फ़ैसला होगा वो अदल करने वाले दो अफराद करेंगे, लेकिन नमाया बेहतरीन जानकारी देने वाले मंशूर को मद्दे नज़र रख के उससे करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने वही इनको पहुंचाया है तोहफ़ा हदायत। दोस्तों ये सारा फ़ैसला जो होगा वो मुकम्मल इंक्वायरी के बाद होगा। अगर इंक्वायरी में साबित हुआ कि हाँ भाई गुनाह है तो फिर वो सज़ा उसके मुताबिक दी जाएगी, अगर नहीं तो फिर छोड़ दिया जाएगा। लिहाजा अब आप देख लें कि हमारे मुल्कों में पकड़ लिया जाता है और पूरी उम्र ही मर जाता है, यानी उसको इग्नोर कर देते हैं और उसको जो जेल में डला हुआ होता है उसके हकूक़ भी मस्ख कर देते हैं। इसी तरह आप देख लें बड़े बड़े जो लोग हैं उनके पास जो रखे हुए हैं
हारी या नौकर उनके साथ भी यही सलूक होता है। मज़ीद हम देखते हैं कि तोहफ़ा हदायत जो अल्लाह पहुँचाने वाला है इसका क्या करना है वो बताया गया है आयत के अगले हिस्से में, ये कह करके वकफ़ारतुन तआमु मसाकीना, अजाला करने वाला है ज़रूरतमंद की ज़रूरियात ज़िंदगी का, यानी उसको जो भी उसका जिसको पकड़ा है अगर उसके हकूक़ मस्ख़ हुए हैं या उसको नुकसान पहुंचा या उसको नज़रअंदाज किया गया उसका अजाला करना है और ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान भी मुहैया करना है उसको। मज़ीद हम देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है वो बताया गया है, ये कह कर के औ अदलु ज़ालिका सियामन, या बराबर मज़कूरा बाला को रोकना है, यानी जो उसने किया है जो कर रहा है फंसे हुए आदमी के साथ उसको रोकना है। और मज़ीद क्या करना है वो बताया गया आयत के अगले हिस्से में, ये कह कर के सियामल्ली यज़ौ का वबाला अमरी, ताकि वो किए धरे का मज़ा चखे अपने बराह रास्त अपने किए हुए काम की मुसीबत का, यानी जो उसने काम किया है उसका मज़ा चखे जो पकड़े हुए के साथ ज़्यादती की है। लिहाजा मज़ीद क्या है वो बताया गया है आयत के अगले हिस्से में, अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ़, अल्लाह ने दरगुजर किया इसके मुतल्लिक जो उसने गुज़रे हुए ज़माने में किया था। अगर वो ऊपर वाली शराइत पूरी करता है तो फिर माफ़ी है, और अगर फिर भी वो बाज ना आया पकड़ने वाला तो फिर क्या करना है वो बताया गया है। वमन आदा फयंताकिमुल्लाहु मिन्हु, और जो इसने दोबारा वही कुछ करने का इरादा किया तो इसके मुतल्लिक कायनात बनाने वाला कार्रवाई करता है इसके अमर के मुताबिक, यानी जो कायनात बनाने वाले का अमर है उसके मुताबिक कार्रवाई हो जाती है जिसको मकाफ़ात अमल कहते हैं। मज़ीद क्या कहा गया आयत के आखिरी हिस्से में वो है वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुंतिकाम, और कायनात बनाने वाला ज़बरदस्त नतीजा देने वाला है, यानी आप किसी के साथ ज़्यादती करोगे तो उसका नतीजा मिलना ही मिलना है, लाजमी मिलेगा उसका। लिहाजा दोस्तों ये हमारा आज का लेक्चर था, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि मरवजा तर्जुमे में जो लिखा है कि जानवर काबा में भिजवाने फ़लाँ करना है, कुछ भी नहीं लिखा, और ना ही आपने इस पर प्रैक्टिकल मरवजा तर्जुमे में जो लिखा है उस पर प्रैक्टिकल होते देखा ही नहीं है आज तक। अगर किसी ने देखा है तो मुझे बताओ कहाँ देखा है। लिहाजा अगर मरवजा तर्जुमा को हम देखें तो ये काबा जो सऊदीया में है वो साबित ही नहीं होता, क्योंकि आयत के तर्जुमा में जो लिखा है वो अमल वहाँ हो ही नहीं रहा है। लिहाजा हदियन जो है तोहफ़ा हदायत को कहा जाता है जो रसूल के थ्रू पहुंचाई जाती है। हमारा ये आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।